کنیکشن کس طریقے سے جڑ رہے ہیں، ان کے ہارٹ کیسے ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور یہی نہیں ان کا جو کریکٹر ہے وہ کس طریقے سے بدل رہا ہے. تو اس طریقے سے ایک بہترین سوسائٹی کا بھی جنم ہو رہا ہے. تو بہترین سوسائٹی بنانے کے لیے بھی الرا ٹی وی اس کام کو کر رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر پیار، محبت، عشق کے پیغام کو لے کر کے چل رہی ہے. اور یہی نہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، سب سے بہترین بات تو اس میں یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم سے ہو، کسی بھی جاتی سے ہو، کسی بھی ورن سے ہو، کسی بھی دیش سے ہو، گورا ہو یا اس کا رنگ کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ سبھی کا بنانے والا، سبھی انسانوں کا بنانے والا، ہر ایک چیز کا کریٹر جو ہے وہ ایشور ہے، گاڈ ہے، اللہ ہے. تو اس کے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. اس کے یہاں یہ ہے کہ دل تمہارا کیسا ہے، تمہارا کریکٹر کس طریقے کا ہے. کریکٹر بلڈنگ کرنے کے لیے تمہارا دل پاک ہونا چاہیے. آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اگر اے لوگوں تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح سلامت ہے تو پورا جسم صحیح سلامت. اس طرح کا کچھ حدیث شریف تھا. تو دل اگر ہمارا پاک ہو رہا ہے، قلب ہمارا اگر پاک ہو رہا ہے، اور پاک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ الرا ٹی وی سے مل رہا ہے لوگوں کو. نیچے نمبرز چل رہے ہیں ذکر قلب لینے کے لیے. ہمارے جو نئے ویورز ہیں وہ ذکر قلب لینے کے لیے نیچے جو نمبرز چل رہے ہیں، ہاؤ ٹو ٹیک ذکر، نمبر پہ کال کر کے ذکر لے سکتے اینی ٹائم، کبھی بھی. آل اوور ورلڈ میں پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ محبت وہ ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اور یہی نہیں، سرکار امام مہدی گوہر شاہی پوری دنیا کے لوگوں کو ایک کر رہے ہیں. سید الوصل گوہر ان کے نمائندے، اور الرا ٹی وی پر لائیو ٹرانسمیشن کر کے نہ جانے ہزاروں سے زیادہ ویڈیوز ابھی آپ کو الرا ٹی وی پہ موجود ہے. الگ الگ موضوع پہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور کیا وہ بیان کر رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے قلوب کو اللہ تعالی نور سے منور کر رہا ہے. ایشور، گاڈ، آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، کوئی بھی نام دے دیں، لیکن وہ تو ہے ایک جو پوری انسانیت کو ایک کرے گا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اے ایمان والو، جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ اپنی قوم لائے گا. اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. تو یہ قوم جو ہے وہ آ رہی ہے، کیونکہ آخری دور چل رہا ہے اس دنیا کا، اور اس دور میں ہی آنا ہے امام مہدی سرکار گوہر شاہی کو. وہ اس وقت غیبت میں ہے، لیکن وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، ضرور لائیں گے. تو آج ہمارے ساتھ انٹرویو میں جو گیسٹ ہیں وہ ہیں فرحت باجی، جو کہ بہار سے بلونگ کرتی ہیں، بہار سے، انڈیا سے. اور میں سواگت کرتا ہوں فرحت باجی کا. السلام علیکم گوہر شاہی. مرحبا فرحت باجی، آپ کیسے ہیں؟ آپ؟ وعلیکم السلام گوہر شاہی. مرحبا بھائی، ہم ٹھیک ہیں. سب سے پہلے مالک کی بارگاہ میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گوہر شاہی مرحبا، مرحبا یا سیدی پاک جی، مرحبا. اور محفل میں شامل سبھی بھائی بہنوں، عزیز سامعین کو میری طرف سے مدبانہ سلامت ہے. جی باجی، تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ آپ کے اوپر سرکار امام مہدی گوہر شاہی کا جو فضل و کرم ہوا وہ کس طریقے سے ہوا، کب ہوا، اور کیا ایسی گھٹنا ہوئی کہ آپ سرکار آپ کو ملے، سرکار آپ کو کیسے ملے؟ سوال تو یہاں یہ ہے. بھائی، ہم جو بھی بیان کریں گے، حق بولیں گے، میرے زبان سے کچھ بھی غلط نہ نکلے. سرکار کرم پر، سرکار بہت سخی ہیں، لاڈپال. ہم لوگ پٹنہ
इंडिया, बिहार, फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं। और एक वक्त ऐसा था कि हम काफी बीमार थे, चलने फिरने से मजबूर थे, काफी इलाज हो रहा था, दवा फायदा नहीं कर रही थी। और मेरे घर में हम ही गार्जियन थे, मतलब खुद ही मर्द और खुद ही औरत थे पूरे घर को चलाने वाले। ऐसे में एक दिन हम बहुत ज्यादा गमज़दा थे और नमाज जिक्र अस्कार करके रोते रोते सो गए। उसी रात मालिक का करम हुआ, तो उसको हम एक शेर से शुरुआत करेंगे कि अलग बैठे फिर भी आँख साफी पड़ी हम पर, अगर है तिश्नगी कामिल तो पैमाने भी आएंगे। तो जोश रहमत, जोश इलाही सरकार इमाम मेहंदी गौहर का कल हुआ। उसी रात ख्वाब में सरकार इमाम मेहंदी गौहर शाही तशरीफ फरमा हुए। हम तो उस वक्त नहीं जानते थे, क्योंकि उस वक्त मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। तो हमने देखा ख्वाब में कि एक बहुत बड़ा मैदान है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सूखा दरख्त है और उस दरख्त के नीचे खटिया है, बेगर बिस्तर के उस पे हम सोए हैं, रो रहे हैं। तो देखा कि एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा हुए, बोले रो मत, और बोले बस अल्लाह अल्लाह करो और अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह के सिवा कोई नवाजने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं, बस अल्लाह पे भरोसा करो और इस तरह से करो। क्योंकि हमको जिक्र कल्ब के बारे में, हालांकि हम लोग पढ़े लिखे फैमिली से हैं, लेकिन जब बड़े हुए कुरान सिखाया गया, नमाज सिखाई गई, तो ये नहीं बताया गया था कि जिक्र कल्ब भी कुछ होता है। ना यही बताया गया था कि मोमिन कौन होता है, उम्मती कौन होता है, बस खाली नमाज पढ़ो, रोजा रखो। कई बार हमने अपने वालदा से भी, अपनी नानी से भी सवाल किया कि रोजा क्यों रखा जाता है, तो बोले उम्मती पे फर्ज है, करो, तो करते रहे, नमाज पढ़ो, नमाज फर्ज है एक बार। लेकिन फिर मेरी अम्मी ये भी फरमाती थी कि नमाज में अगर किसी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, तो हम पढ़ते थे फिर छोड़ देते थे। तो मेरी अम्मी अक्सर डांटा करती थी कि ये नमाज को खेल बना ली हो, एक हफ्ता पढ़ती हो, एक हफ्ता ना पढ़ती। हम बोला आप ही ने बोलती हैं कि नमाज में ख्याल आए तो नमाज नहीं होती है, तो हम अपने आप को क्यों थकाएं, इसीलिए जब नमाज होगी नहीं तो हम मेहनत क्यों करें। तो इसी तरह से सिलसिला चलता रहा और कभी किसी ने ये बताया ही नहीं कि मोमिन क्या होता है और मुसलमान क्या। बल्कि सवाल भी जब हमको फातिहा पढ़ने के लिए सिखाया जा रहा था कि फातिहा पढ़ो, वल मोमिन मोमना और मुस्लिम मुसलमान, तो उस वक्त भी हमने सवाल किया था कि इसमें मुस्लिम मुस्लिमा बोला जा रहा है, मोमिन मोमना, तो इसमें कुछ फर्क होगा ना, तो बोले ना, जो मुसलमान है वही मोमिन। हो गया, बात खत्म। अब तो ये ख्वाब का था, उस टाइम में हम नमाज पाबंदी से पढ़ते थे, तिलावत भी करते थे, तो हम बस जैसे सुबह उठे नमाज पढ़े, लेकिन उस आवाज में ऐसी कशिश थी कि मेरा ध्यान बार बार उसी में जा रहा था। तो हम बस ही करने लगे अपने आप, अब कोई तो बताने वाला था नहीं, बस अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, उठते बैठते सोते जागते कर लिया। तो देखिए करम हुआ मालिक का कि 5वें या 6ठे या 7वें दिन, सही से याद नहीं है, आज से पहले मेरा जिक्र कल्ब चालू हुआ। जब चालू हुआ तो उस वक्त मेरे सीने में गरम गरम महसूस हुआ और उसमें बड़ी ही मतलब लज्जत थी और मेरा हाथ पैर पसीने पसीने होने लगा, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं था कि यही जिक्र कल्ब। अब शुरू शुरू में पहले थोड़ा होता था, फिर नहीं होता था, कोई दिन हुआ कोई दिन ना हुआ। अब ऐसे करते करते मतलब अब उसमें हमको लज्जत आने लगी, मजा आने लगा। उसके बाद तिलावत करें तो और अच्छा लगे, नमाज पढ़ें तो और अच्छा लगे, तो हमको लगे बस ऐसा ही होता रहे। जब करीब 6 महीना हुआ तो मेरी तबीयत भी सरकार के करम से अच्छी हो गई, हम चलने फिरने लगे हैं। मेरी बेटी मेरा ऑपरेशन करा दी
और मेरी बेटी की नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई, वो पुलिस डिपार्टमेंट में। उसके बाद फिर हम सोचा कि एक हदीस शरीफ याद आई कि हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अगर तुम खा लो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहता है तो खाना हराम हो जाता है। तो हम बोला खाने के लिए ये हुक्म है, और ये तो इतनी बड़ी नेमत है कि लोगों को बताना चाहिए, तो क्यों ना इसको हम घर से शुरू करें। तो मेरे घर में मेरी भाभी थी जिनका नाम है शगुफ्ता गौहर। तो हमने बोला कि भाभी, बेगर दिल के हाजिरी के नमाज नहीं होती है, जब दिल कलमा पढ़ेगा, अल्लाह अल्लाह करेगा तो ही नमाज, यानी जबान इकरार करे, दिल तस्दीक करे और जिस्म अमल करे तो ही नमाज होती है। तो भाभी बोली कि आप ही ज्यादा काबिल हैं, इतने बड़े बड़े मौलाना मौलवी हैं और कोई कुछ नहीं बोलता और आप ये बोलती हैं। तो उनको लगा कि शायद मेरे दिमाग पे असर हो गया है। तो उन्होंने मेरी बेटी से कहा कि देखो ना, मेरे घर का नाम बेबी है, तो बोली देखो नौशीन, तुम्हारी अम्मी की है ना, लगता है कि दिमागी हालत सही नहीं, बहकी बहकी बात कर रही। तो फिर हम चुप हो गए, सुन लिया कान से, तो फिर हम उनको दबाव नहीं दिया। फिर मगर दिल में एक ये थी कि हमको इतना सुकून मिल रहा है, इतनी लज्जत मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है, तो काहे नहीं और बताया जाए। तो मेरे पास फरहत पढ़ने आती थी जिसका नाम फरहत रेहाज है। तो ये बात है हमने फरहत को बताई, तो फरहत बगैर हुज्जत हवाला के मेरे बात पे यकीन की और जैसे बताया उसने अमल किया। उसका तीसरे दिन कल्ब जारी हो, तो मेरी और हौसला अफजाई हुई कि हम सही हैं, हम सही बोल रहे हैं, जब दिल कलमा पढ़ता है तो ही ना। फिर हमको इस दरमियान में मेरी बेटी की नौकरी लगी गई थी, मोबाइल लाके मिला, मोबाइल मेरी बेटी थोड़ा सिखाई, तो हम जैसे मतलब यूट्यूब खोले हैं वैसे इज्जत माफ सैयदी मुसल गौहर मालिक जी का वीडियो आ गया, जिसमें शुरू ही में था कि दिल की धड़कनों में अल्लाह मिलाना क्यों जरूरी। उसको हमने देखा, एकदम मेरे खुशी का ठिकाना ना रहा, ना जाने कितनी बार देखा, तो एकदम ही हो गया। उसके बाद लगातार हम मतलब मालिक जी का वीडियो देखते रहे। उसके बाद अब हम अपने घर से रिश्तेदारों में ये बात बताने लगे, अब तो तालीम भी मिलने लगी मालिक जी के वीडियो से, और हमको मतलब सब कुछ था। ये तो सरकार इमाम मेहंदी गौहर शाही का हम गुनहगारों पे बहुत बड़ा कर्म है कि गैबत फरमाने से पहले उन्होंने हम लोगों के रहनुमाई के लिए सैयदी मालिक को बैठाया कि हक की तालीम अलरा टीवी से मिल रही है। तो मालिक जी का वीडियो सुनते रहे, मालिक जी पूरा कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से। फिर मालिक जी का ये था, एक हदीस था कि ला सलाता इल्ला बेहुजूरिल कल्ब, यानी दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती। फिर मोमिन और उम्मती का भी फर्क बताया। ये सब अलरा टीवी से मिला। धीरे धीरे मालिक के करम से, मालिक के नवाजिश से इल्म थोड़ा थोड़ा मिलने लगा। तो पहले हमने अपने रिश्तेदारों में सभी के यहाँ गए, सभी को बताया, किसी ने अमल नहीं किया, सब हुज्जत हवाला करने लगे कि अरे दिल करता है तभी तो नमाज पे खड़े होते हैं, दिल ही से तो नमाज पढ़ते हैं, तुम ही ज्यादा काबिल हो, फलाना चिलाना बहुत सारी बात। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि फरहत रियाज का जिक्र कल्ब चल चुका था। उसके बाद मेरी एक दोस्त है शाजिया परवीन, जो हमारी रिश्तेदार भी है और मेरी दोस्त भी है, बचपन के हम लोग दोस्त हैं, हम लोग की उम्र भी एक है। फिर ये बात हमने उसको बताया और उसको भी हमने बोला कि अल्लाहू अल्लाहू करो मेरे साथ साथ, तो उसका भी 7वें दिन जिक्र चल गया, तो और हिम्मत मिली। ये 2 लोग हो गए। उसके बाद फिर मेरे घर भी आती थी, तो मेरी भाभी से भी बोली, तो भाभी कुछ ध्यान ना दी, भाभी से सिर्फ जी बाजी, हाँ यहाँ पर एक हदीस शरीफ हाँ याद आ रही है कि
اے لوگوں تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے کہ جس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. ہاں اگر وہی فساد میں ہے تو پورا وجود ہی فساد پورا میں ہے. جسم فساد یاد ہے. رکھ. بالکل ہاں وہ یاد رکھ وہ تیرا دل. ہاں یہ صحیح حدیث ہے. یاد رکھ وہ تو تیرا پھر دل ہے. جی 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 پھر ہم نے بھابھی کو بولا تو خیر بھابھی اب کچھ راہ پہ آ گئی تھی. بھابھی بولی ٹھیک ہے اتنا مطلب ہے تو میری بات مانتی بھی تھی تو پھر لینے میں کیا کر کے دیکھتے ہیں تو پھر وہ ذکر لی. تو یہ سب پھر مالک کے یہ الرا ٹی وی سے اتنا علم ملا. جب موبائل آیا میرے پاس مالک کا کرم ہوا تو وہی نہ ہے. ایک شعر ہے کہ بدل دیا میرے دل کے نصیب کو تو نے یا گوہر. اب آرزو ہے ہزار بار تجھی پہ اسے نثار کروں. اپنے مالک جی پہ اپنی زندگی کو ہم نثار کر دیں فنا کر دیں جس میں کوئی غرض نہیں ہو. مالک نے اتنا نواز دیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک شاعر کا ہے کہ دو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کا. ہم تو جتنا سوچے نہیں تھے مالک نے اتنا عطا کر دیا ہے کہ میرے دامن سے زیادہ جتنا بھی سجدہ کریں شکر ادا کریں سب کم ہے. تو پھر میری بھابھی شگفتہ گوہر نے ذکر لیا. ان پہ یہ کرم ہوا کہ ان کو دیدار ہونا شروع ہو گیا. میری ہمت اور بڑھی کیونکہ ہم ٹیچر لائن میں رہے ہیں. ہندی کی ٹیچر رہ چکے ہیں. مطلب لوور کلاسز میں پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھاتے تھے ٹیوشن دیتے تھے. تب ہم اب رشتے داروں سے تو یہ ہو گئے لیکن امید نہیں چھوڑا نا امید نہیں ہوئے کیونکہ یہ حدیث ہے کہ نا امیدی کفر ہے اور غلط خیال دل میں لانا گناہ ہے. اس کے بعد ہم محلے محلے جانے لگے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے بتانے لگے. کئی لوگوں کا چلا مالک کے کرم سے. اس کے بعد ایسا ہی پڑھ رہے تھے تو حبل اللہ کا آیا تو جس ٹیچر سے ہم نے پڑھا تھا وہ مفتی ہے مولانا ہے. ہم مولانا کے بیچ میں بھی رہے ہیں کافی بڑے بڑے مولانا کے بیچ میں رہے ہیں. تو ہم ایک دن ایک بڑے مولانا ہے مفتی صاحب نام لینا نہیں پسند کریں گے ہم. تو ان سے پوچھا کہ حضرت یہ حبل اللہ کیا ہوتی ہے. تو کہیں کیا جب بے وقوف ہو تم. ارے جب تم قرآن پڑھتی ہو نا تو سمجھو قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں یہی حبل اللہ. پھر ہم نے پوچھا کہ مومن اور مسلمان کا فرق بتائیے. تو بولیں کہ ارے مسلمان میں پیدا ہوئے ہم ہی مومن ہیں ہم ہی مسلمان. پھر ہم نے پھر ایسا ہی ہمارا شریعہ میں آنا جانا نکال رہا تھا. کئی مولانا کے بیچ میں بیٹھتے تھے گفتگو ہوتی تھی. تو پھر ایک دن ایسا ہی بات چھڑی یہی کہ نماز ایک ٹائم کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک ٹائم کا قضا ہو جاتا ہے تو 80,000 جہنم کی آگ میں جلنا پڑتا ہے. تو ہم بولے کہ آپ لوگ مولانا صاحب معاف کیجیے گا اگر بے ادبی ہو تو آپ لوگ سب یہی بولتے ہیں کہ قرآن پڑھو نماز پڑھو اور نماز کی شرط کیا ہے یہ بتاتے نہیں ہیں. اور حشر میں امتی کی پہچان نور سے ہوگی. تو نور بنانے کا طریقہ آپ بتاتے نہیں کیونکہ مالک کی بارگاہ سے الرا ٹی وی سے یہ سب علم مل چکا تھا کہ نور کیسے بنایا جاتا ہے. دل اللہ اللہ کیسے کرے گا نفس کیسے پاک ہوگا. تو وہ لوگ ہم پہ برہم ہو گئے. بولے نور بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. ارے مسلمان ہیں کافی ہیں امتی ہیں اور ہم لوگوں کی تو بخشائش ہو جائے گی. بس نماز فرض ہے سب سے پہلے حشر میں نماز کی پوچھ ہوگی. تو ہم نے بتایا کہ دیکھیے معاف کیجیے گا چھوٹی منہ بڑی زبان نہ سمجھیے گا لیکن یہ اللہ کی بات ہے اور دین کی کامیابی کی بات ہے. آپ لوگ نماز پہ زور دیتے ہیں تلاوت پہ زور دیتے ہیں اور پردہ پہ زور دیتے ہیں کہ ایسے پردہ کرو ایسے چلو. تو آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ جس کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے یعنی
उठते बैठते सोते जागते, यहाँ तक कि आप खरीदो फरोख्त भी करें तो वो अल्लाह अल्लाह करे, वो मोमिन है। जिसमें नूर है वो ही मोमिन है और वही उम्मती है। और ये भी है, हशर में ना माल काम आएगा और ना बे, कामयाब होगा वो जो कल्बे सलीम लाए। तो मौलाना लोग तो मेरी बात नहीं सुने, एक हाफिज साहब थे वो मेरी बात सुने और अमल किए, लेकिन उनसे हमारा राब्ता फिर नहीं हुआ कि हम उनसे पूछें कि उनकी क्या कैफियत है। तो यानी सारा दारो मदार कल्ब की तहारत और नफ्स की पाकी पे है। और नफ्स कैसे पाक होता है, जबकि कुरान कह रहा है कद अफलाह मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक किया। तो देखिए हम लोगों को भी खुर्शीद साहब ये बताया गया था शुरू से ही कि कुरान पढ़ लो, मुर्दे पर बख्शो, और कोई मर जाए तो कुरान खानी करो। और ये बताया ही नहीं था कि कुरान गौर व फिक्र की चीज है, खुद पढ़ो खुद समझो। बस कोई मर गया तो कुरान खानी में चले गए, कोई ये हो गया। अब इज्तिमा में भी जहाँ इज्तिमा का मालूम हो तो वहां जाएं, वहां वो लोग हदीस सुनाती थी बुखारी शरीफ, तिरमिजी, इब्ने माजा, जिसमें लिखा हुआ था कि जिसके अंगूठे में राई बराबर भी नूर होगा तो मतलब उसकी बख्शाइश होगी, वही कामयाब होगा। तो इस पॉइंट को हम अंगूठे में थोड़ी होगा। जी हाँ, तो इस पॉइंट को अंगूठे लेकर में के नहीं होगा, कल्ब में होगा ना बाजी। हाँ नहीं, उन लोग ऐसे बताती थी, तो इसी पॉइंट को वो लेके गलत हमको बताते। मौका मिलता था तो वैसी महफिल में फिर हम तफसील से बताते थे। और अब तो मतलब मिशन करना और ये फैज पहुंचाना इतना आसान कर दिया है मालिक ने कि मतलब हम गुनाहगारों के लिए लॉटरी खुल गई है आल्दा टीवी प्लेटफॉर्म से। बस आइए आल्दा टीवी के व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए, इसमें जिक्र कर भी लीजिए और फैज़याब होइए। यहाँ तो ना का कोई सवाल ही नहीं, एक बार ले लीजिए। अरे इमाम मेहंदी का सबसे बड़ा मतलब फैज ये है कि कम पेश इस दुनिया में हमारी रहनुमाई के लिए 1,24,000 पैगंबर आए और काजने कितने औलिया लिल्लाह आए, लेकिन जो फैज अलरा टीवी से हम लोगों को मिल रहा है आज तक ये फैज किसी ने नहीं पहुंचाया, नहीं दिया। समझिए कि दुनिया के गुलशन में ऐसा फूल खिला ही नहीं है जो हर मजहब हर फिरके के लिए फैज़याब हो, दस्तयाब हो। यहाँ तो ये मामला है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जिसका जिक्र कल्ब जारी हो जाता है खुर्शीद भाई, वो समझिए कि दुनिया का बहुत ही खुशनसीब इंसान है। उसमें इतनी लज्जत, इतना सुकून, इतना सुरूर है। अब पहले हम ही को देखिए, हम मेरे फैमिली में सब बहुत काफी पैसे वाले लोग थे। हम जाते थे तो एहसास कमतरी होता था कि इन लोगों के पास इतना है, हम खुद शर्मिंदा होते थे। लेकिन जब मालिक का करम हुआ, मालिक ने हमको नवाजा, तो अब कैसी भी महफिल में जाएं, उम्रा की महफिल में जाएं या सलम एरिया के फंक्शन में जाएं, ना तो बहुत ज्यादा किसी का देख के मेरे दिल को एहसास होता है और ना किसी को, बल्कि किसी को तकलीफ में देखते हैं तो हाथ दुआ के लिए खुद ब खुद सरकार की बारगाह में उठ जाते हैं कि मालिक सब पे करम कीजिए। ये इतनी बड़ी नेमत है कि मेरी जबान में क्या ताकत है कि हम बयान कर सकें। समझिए कि दुनिया की किसी भी शय में, किसी चीज में, दौलत से लेके कुछ भी हो, घूमना फिरना हो या कुछ हो, इतनी लज्जत इतना सुकून है ही नहीं जितना। और सबसे बड़ी बात यह है खुर्शीद भाई कि हर लज्जत से आदमी थोड़ी देर के बाद है ना उकता जाता है।
लेकिन ये जिक्र कल्ब की लज्जत इतनी है खुर्शीद भाई कि इसमें लगता है कि और डूबे डूबते ही चले जाएं, बस फना हो जाए। एक जमाना था खुर्शीद भाई कि हमको मरने से बड़ा डर लगता था, तो मतलब अब उसके लिए भाई कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, ये करो, लेकिन सुकून नहीं मिलता था। और अब तो हम हर वक्त तैयार रहते हैं कि बस मालिक का दीदार होता रहे और जान निकलती है। वाह, मालिक के अब इसी बात पे मैं चाहूंगा बाजी, इसी बात पे मैं चाहूँ कि एक नाज शरीफ पढ़ दूं मैं। हाँ बिल्कुल, इरशाद। ठीक है। हजरत बाबा बेदम शाह वारसी का लिखा हुआ कलाम है, बेखुद किए देते हैं अंदाजे हिजाबाना, पेश करने के साथ हाजिर करता हूँ। बेखुद किए देते हैं अंदाजे हिजाबाना, आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना, आदिल में तुझे रख लूं। जैसा कि बाजी ने अभी कहा कि उनका दिल जो है वो अब सुकून में है। पहले मौत की ख्वाहिश नहीं होती थी, मौत से डर लगता था, लेकिन अब मौत के लिए तैयार रहती है। अगली लाइन सुनिएगा। इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना, जब जान लबों पर हो, या सरकार, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, आदिल में तुझे रख लूं। और अगली लाइन समाज फरमाइएगा। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, करके हमें दीवाना, आदिल में तुझे रख लूं। और बाजी मुझे ऐसा लगता है कि अगली लाइन सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वही मुझे लगता है कि वो होश और हवास जो खोने वाली बात है, जो आप हमेशा गुम रहती हैं सरकार की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, और हुजूर इस्लाम की मोहब्बत में, शहीदी की मोहब्बत में। मैं होश और हवास सपने इस बात पे खो बैठी, मैं होश और हवास सपने इस बात पे खो बैठी, जब तूने कहा हंस के आया मेरा दीवाना, जब तूने कहा हंस के आई मेरी दीवानी, आदिल में तुझे रख लूं। और बेदम
میری قسمت میں چکر ہے اسی در کے بے دم. اب دیکھیے نا فرحت باجی کو کتنا لوگوں نے بولا کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، حق نہیں ہے، ہاں، اور لیکن پھر بھی باجی لگی رہی، اسی درد میں لگی رہی. تو اس لائن کو خیال میں رکھتے ہوئے کہ بے دم میری قسمت میں چکر ہے اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، مجھ سے در جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، مجھ سے در جانا نہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا عادل یا گوہر عادل میں تجھے رکھ لوں. واہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ. جی بھائی تو میں یہی کہوں گا کہ جی جی ضرور باجی فرمائے. تو محبت کس چیز کا نام ہے اب سمجھ میں آیا ہے، محبت کس چیز کا نام ہے اب سمجھ میں آیا ہے، یہ وقت امام مہدی کا ہے اب سمجھ میں آیا ہے، لوگوں کے قلوب کو نور سے اللہ کے جاری کر دیا، شرح صدر کر دیا، محبت پیار عشق کا پیغام عام کر دیا. اب نہیں تو کب کہو گے یہ زمانہ کسی اور کا نہیں، امام مہدی گوہر شاہی کا ہے. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی پہ ایک شعر مالک کے جب ہم کو نوازے تھے ہم بہت تڑپتے تھے، مالک کی بارگاہ سے اجازت لینا چاہے، ہم کو سب نے کہا کہ آپ سب کو ذکر دیتی ہیں، یہ شیطانی معاملہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کا ذکر چلتا ہے، آپ ذکر دیتی ہیں. ہم بولا مالک کا کرم ہے تبھی نا ذکر چلتا ہے، تو شیطانی حرکت ہو. تو ہم بڑے پریشان تھے، مالک کی بارگاہ میں اکثر محفل میں لکھتے تھے کہ مالک ہم کو اجازت دیجیے، تو مالک فرمائے اپنے زبان اطہر سے کہ ایسے کیسے اجازت دے دیں، اپنی فوٹو اپنا نام بتائیے اللہ ٹی وی کے میسنجر پر بھیجا، پھر بھی کچھ نہ. تو یہاں ہم نئی جگہ میں آئے ہیں، ہم پٹنہ کے رہنے والے ہیں، پھلواری شریف کے. تو یہاں آئے تو یہاں بھی لوگوں کو بتائے، سب کا ذکر چلا. تو اس میں ایک لڑکا جو تھا وہ انسٹاگرام ڈاؤن لوڈ کیا. ہم کو خورشید بھائی اچھے سے موبائل ابھی چلانا نہیں آیا، نہیں سیکھ پائے. تو وہ ایک دن آیا تو مالک تھے تو دیکھا، اس کے دوسرے دن آیا تو دوڑا آیا. اسی ٹائم 9 بجے رات میں میرے یہاں محفل ہوتی ہے ذکر جہر کی. تو بولے مالک لائیو ہیں، تو وہ جلدی سے لگا دیا. اور اس کے بعد میرے تو نصیب کا تو ستارہ ہی چمک گیا کہ مالک ہم کو لائیو لے لیے. مگر مالک نے تو کرم کیا، لائیو لے لیا، لیکن ہم کو ہوش و حواس نہیں رہا کہ ہم کی بارگاہ میں کیا بول رہے ہیں، نہیں بول رہے ہیں. میرا سر کھلا ہے، کیا ہے کچھ حواس ہی نہیں رہا. بس اتنا یاد رہا کہ مالک اپنی زبان اطہر سے ایک بار کہہ دیجئے کہ فرحت تم کو اپنا لی، اور مالک نے کرم کیا. تو اسی وقت ہم نے ایک لکھا تھا کہ میری بہار سے شرمائی جا رہی ہے بہار. توجہ چاہوں گی خورشید بھائی. جی ضرور. ہاں، میری بہار سے شرمائی جا رہی ہے بہار، بنا دیا تیری الفت نے شاہکار مجھے. کیا بات. میری بہار سے جو ہم پہ بہار آئی ہے، جو ہم نکھرے ہیں، جو ہم اتنے خوش نصیب ہوئے ہیں، جو اتنے دولت مند ہو گئے ہیں کہ اب اور کسی دولت کی ضرورت نہیں،
तो खुद बखुद दिल से निकला कि मेरी बहार से शर्माई जा रही है बहार, यानी दुनिया में जितनी भी बहारें हैं वो मेरी बहार से शर्माई जा रही है। क्यों शर्मा रही हैं? बना दिया है तेरी उल्फत ने यूनुस मुझे शाहकार। क्या बात, वाह। बस मालिक की बारगाह में अर्ज है कि मालिक हमको और मेरे जितने भी तमाम भाई बहन हैं बस पूरी तरह अपना अपना वफादार बना लीजिए मालिक। हम कुछ भी करें बेलौस, बगैर दिल में किसी ख्वाहिश या कि हमको बदला मिलेगा या कुछ भी, हर तरह की गलाजत, हर तरह की दुनियावी ख्वाहिश तलब को मेरे दिल, मेरे दिमाग, मेरे वजूद से निकाल दीजिए मौला, और सिर्फ अपने चौखट का मोहताज रखिए, अपने दर का भिखारी रखिए आखिरी सांस तक मौला। बहुत करम किया है मौला, मेरे पास जबान नहीं है कि आपका शुक्र अदा करें। और ये तो ये नेमत है, हम जितने मेरे भाई बहन तक या हाजिरीन महफिल है, जितने लोग तक मेरी आवाज जा रही है, हम आप लोगों से इल्तिजा करेंगे। देखिए मरना हमको भी है, कब्र में जाना है, हम गलत बात नहीं बताएंगे। अब हम ओल्ड एज में है, मेरी उम्र 50 साल हो गई है, कि हर तरह की नफरत, बोझ, हसद, कीना को किनारे रख करके अगर आपको अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब है तो बस एक बार अल्लाह टीवी पे आइए, मालिक की हक की तालीम सुनिए जो कुरान हदीस से बताया जा रहा। कुरान बता रहा फमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फहुवा बिनूरि रब्बिही, कि अगर इस्लाम पे कारबंद होना चाहते हो तो अपना सराशदर करो। तो मालिक की गुफ्तगू को सुनिए, फिर कुरान से मिलाइए, अगर गलत हो तो मेरा सर आपका जूता है। एक बार आजमाने में क्या जाता है, दुनिया की बहुत सारी चीज लोग खरीद के लाते हैं। तब सपोज दैट अब मैं मिसाल के तौर पे फल लाए, सड़ा निकला तो उसको फेंक दिया, अच्छा निकला तो खा लिया। तो अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से ये हक की तालीम मिल रही है, हर नफरत, हर बोझ को हटा करके उस तालीम को सुनिए कि असल इस्लाम क्या है, दीन में कामयाबी का राज क्या है। ये राज किसी ने नहीं बताया और ये राज आपको अल्लाह टीवी, सिर्फ अल्लाह टीवी पे ही मिलेगा। अच्छा लगे, कुरान हदीस से मैच हो तो आप अपना लीजिए, अपने किस्मत का सितारा चमकाइए। अगर आपका नसीब होगा तो करम मालिक के यहाँ तो ना है ही नहीं है। जब हमारे जैसे कूड़ा कचरा अनजाने में इतनी बड़ी नेमत दे दिए, ये वो नेमत है कि जिसको मिलती है वही जानता है। ये वो खुशबू है कि बस इस खुशबू में आदमी मदहोश रहता है और इतना नरम दिल हो जाता है कि इंसान से प्यार करना तो आसान सी बात है, जानवर से मोहब्बत होने लगती है। किसी को तकलीफ में देखिएगा तो आपका दिल तड़प उठेगा। अगर आपके दरवाजे पर एक कुत्ता आ जाए, आपके पास थोड़ा भी खाना है तो आप उसकी भूख को मिटाइएगा, आप अपनी भूख को नहीं मिटाइएगा। बस मालिक अपनी बारगाह में बस हमको अपने ही कनीज बना के रखें, अपने कदम की धूल बना के रखें। बस आपके सर के भिखारी रहे, आखिरी सांस जीवन दीजिएगा। अब आपकी गुफ्तगू सुनकर बाजी जरूर हमारे व्यूअर्स को इस बात का एहसास हुआ होगा कि सब कुछ मांग लिया तुझको मांग कर, अब उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। बेशक बेशक, बस लगता है ना खुर्शीद भाई कि अगर मिठाई के तरह हमको खिलाना हो तो खिला देंगे। सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब कोई मरता है तो फट से दिमाग में आता है कि पता ना मोमिन था कि नहीं। सोचिए ना कि दुनिया में थोड़ा सा हाथ जल जाता है तो कितनी तकलीफ होती है।
تو जब इंसान को जब जिक्र कल्ब हो जाता है ना, तो हर किसी से प्यार हो जाता है, खुद ब खुद एकदम आदमी का अखलाक आला हो जाता है। हर के खुशी में शामिल हो या ना हो, हर के गम में शामिल होता है और उसके गम को दूर करने की कोशिश करता है। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये अलरा टीवी से मिल रही है। और सबसे बड़ी ये बात है कि हम सुनते आए थे बचपन से कि पहले कोई मतलब सिया सुन्नी वहाबी और नहीं था, उम्मत वाहिदा थी। और देखिए मालिक जी का करम, इज्जत माफ सैयदी यूनुस अल गौहर जो अलरा टीवी प्लेटफॉर्म के बानी हैं और हम सभी गुनाहगारों के रहनुमा हैं, राह हक है। तो देखिए कि मतलब ये इतना हम कैसे हम बोले, मेरी जबान पे नहीं आ रहा है, तलफ्फुज नहीं आ रहा है कि कितना करम है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक ही इसमें कर दिए हैं। यहाँ पे ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई आला है, ना कोई अदना है, ना कोई किसी को नीचा समझ रहा है, बस सबको एक बराबर। और जो दूर दूर में भी लोग हैं, अगर किसी भाई बहन पे मुसीबत आ जाती है तो सब दुआ करते हैं। मालिक का कितना करम है कि उन्होंने उम्मत वाहिदा कायम कर दी। सुभान अल्लाह रियाज, सुभान अल्लाह बेशक। रियाज अखरायूं। तो ये बहुत बेहतरीन गुफ्तगू आपने फरमाई बाजी। आज का इंटरव्यू का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है और हमने फरहत बाजी से बहुत सारी चीजें जानी समझी, और यही नहीं, उनके जो जज्बात हैं अल्लाह को लेकर के, दिल अल्लाह का जिक्र करे, कल्ब अल्लाह का जिक्र करे, उसके लिए वो कितना कोशा रहते हैं कि किसी का अगर इंतकाल भी हो जाता है तो उनके फौरन पहले दिल में ये बात आती है, दिल में, कि कहीं वो ईमान वाला था या नहीं, मोमिन था या नहीं। तो मोमिन होने की तो कोई शर्त ही नहीं ना, मतलब कि आपको कुछ बदलना नहीं है। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप अथिस्ट हैं, आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, आप इंसान हैं। आपकी दो आंखें हैं, आपकी नाक है, आपके मुंह है, आपके कान है, आपके सर हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तमाम इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद है आपके पास। तो इट मीन्स कि आप अवेलेबल हैं जिक्र कल्ब लेने के लिए। अब जिक्र कल्ब किसी भी धर्म से हैं, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप मान लीजिए कि आप भगवान शंकर को मानते हैं तो उनके नाम से आपको पवित्र नामदान मिल जाएगा। मान लीजिए आप वाहे गुरु को मानते हैं तो उनके नाम से आपको पवित्र नामदान मिल जाएगा। आप भगवान राम को मानते हैं तो उनके नाम से आपको पवित्र नामदान मिल जाएगा। आप ईसा इस्लाम को मानते हैं, उनके नाम से पवित्र नामदान मिल जाएगा। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगा, आपको धर्म परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है, ना सरकार करते हैं ना करवाते हैं। सिंपल सा वो काम है, वो कहते हैं कि अपने कुलूब को अल्लाह के नूर से, अल्लाह के नाम से मुनव्वर कर लो। कोई दिल खाली हो सरकार को अच्छा नहीं लगता, कोई दिल अल्लाह के नूर से खाली हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि हर कुलूब में अल्लाह का नूर हो, ईश्वर का नूर हो, गॉड का नूर हो। आप किसी भी धर्म से हैं, वो तो है एक, नाम भले हो अनेक, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उम्मत वाहिदा बनाने का जो तस्वुर है वो धीरे धीरे बन रही है और पूरी दुनिया में कायम होना है और वो होके रहेगा। दिस इज द प्री प्लान ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरहत बाजी, आप आए आज और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और इतनी प्यारी गुफ्तगू आपने फरमाई। और एक बात और इसी के साथ जी बाजी, सभी सुनने वाले को अगर इजाजत दीजिए तो एक और पैगाम देना चाहेंगे। एकदम आजमाया, जब भी आप लोग मुसीबत में हो, किसी भी धर्म किसी भी हो, तो उस वक्त आप
तसव्वुर करके या गौहर अल मदद कीजिए, मदद जरूर होगी। हम अपना सच्चा वाकया बता रहे हैं। 2020 में हिंदू मुसलमान में झगड़ा हुआ तो मेरे घर के नीचे जो है पूरी आग लग गई। 200 से ज्यादा लोग छत पे आ गए, घर में हम लोग अकेले थे, निकलने का कोई सवाल ही नहीं था। उस वक्त हमने पुकारा या गौहर अल मदद। पता नहीं मालिक कैसे हम लोगों को जिंदा सलामत निकाल लिए। ये एकदम आजमाया हुआ है। फिर एक वाकया, हाँ झूठ नहीं बोल रहे हैं। फिर लोगों ने न्यूज में देखा, तब मेरे पास फोन आया है कि ये तो तुम्हारे घर का दिखा रहा, तुम लोग और जिंदा। हम बोला जिंदा है तब ना फोन रिसीव कर रहे हैं। और सच्चे दिल से मालिक की बारगाह में, सैयदी मालिक की बारगाह में जो जबान से निकल जाता है जैज़ दुआ, मालिक कभी मेरी जबान को शर्मिंदा नहीं होने देते हैं। हम जिस मकान में थे वो बहुत अमीरों कबीर लोग हैं और वो घर के एक ही वारिस हैं और उनकी शादी हुई तो उनको 4 बेटियां थी। तो वो हमसे बोली, हम उनको भी इसे इल्म के बारे में बताएं अलरा टीवी के, लेकिन उन्होंने मतलब नहीं माना। तो एक बार उनकी ननद हमसे बोली कि फरहत बाजी आप इतना कुछ करती हैं तो मेरे भाई के लिए दुआ कर दीजिए कि उसको एक बेटा हो जाए। तो हमने मालिक की बारगाह में तसव्वुर करके अर्ज किया और मालिक ने मेरी जबान की लाज रखी। उनका